Now let's start the next lesson: acid, base, and salt. Acids, bases, and salts. In this class, we will discuss about what is acid, what is base, and what is salt. In our daily life, we eat different type of foods and food materials, and we see and we feel we know about the different type of materials giving the different taste. The substances having different taste. On the basis of their taste, on the basis of tastes of substances are of three types. That means substances are classified into acids, bases, and salts on the basis of their taste. सबस्टांसेस को उनके टेस्ट के आधार पर, उनके स्वाद के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है? दो सबस्टांसेस which are shown in taste are known as acids. वैसे सबस्टांस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। And those substances which gives bitter taste, which are bitter in taste, are known as bases. And the substances are salty in taste are known as salts. तो जो खट्टे होते हैं एसिड्स, जो कड़वे होते हैं, जो तीखे होते हैं बेस, एंड जो साल्टी होते हैं वो साल्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड्स। व्हाट आर एसिड्स? अगर एसिड्स की बात की जाए, एसिड्स, एसिड term is derived from, it is derived from the term acidus, which means sour. It means sour. Latin word है acidus, जिसका मतलब है sour। खट्टा। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, which are sour in taste, are known as acids. Acids are sour in taste. It gives red color to the litmus paper. लिटमस पेपर क्या है? तो लाइकेन नाम के प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जिसको डाई करके डिफरेंट कलर में लिया जाता है। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ऑरेंज लिटमस। जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। चलिए आगे सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। एसिड्स दो सबस्टांसेस, नोट करते जाएंगे साथ साथ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। दो सबस्टांसेस which are sour in taste
which are so in taste are known as acids. For example, curd, milk, orange, apple, tamarind. This contains acid. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इन सब में एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं तो हम लोग इसके आगे देखेंगे। इस contain acids। ये सारे जो सबस्टांस के नाम दिए ये सभी ऐसे सबस्टांस है जिसमें एसिड होते हैं। तो जैसे अगर कहा जाए सीधा सीधी कि सबस्टांसेस आर सोर इन टेस्ट, तो सोर इन टेस्ट दैट इज नॉट itself acid but it contains acid। अगर हम कहते हैं कि विनेगर is sour in taste, that means it contains acid। Grapes sour in taste, it contains acid। Tamarinds are sour in taste, तो sour in taste that means the presence of acid। क्या इंडिकेट करता है? स्वाद में खट्टा होना यह बताता है कि उस सबस्टांस में एसिड है। अब कौन से एसिड हैं, किस सबस्टांस में कौन से एसिड होते हैं, तो इससे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन के आधार पर, सोर्स के आधार पर, उसके उत्पत्ति के आधार पर एसिड्स को क्लासिफाइड किया गया। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप लोग ध्यान से इसे नोट भी करेंगे और याद करते जाएंगे। ये आपको 7 में भी है और 12 में भी। So acids are classified on the basis of, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बेस के आधार पर, किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन of acids। Classification of acids। First of all, on the basis of their origination। Second, on the basis of a strength। Third, on the basis of presence of water। amount of water and ये 3 बेस्ड है क्लासिफिकेशन। और एक कैसे को है on the basis of
presence of oxygen. Presence of oxygen. On the basis of presence of oxygen. तो ये सारे वो बेस है जिसके आधार पर ये वो पॉइंट है ओरिजिनेशन नेट में सोर्स वी कैन आल्सो से सोर्स ये 4 पॉइंट्स वो हैं जिसके बेस पर एसिड को क्लासिफाई किया एसिड्स को डिवाइड किया गया so one by one we will discuss about the acids and its classification on the basis of their sources, on the basis of strength, on the basis of presence of amount of water, and on the basis of presence of oxygen. Now, put the heading first on the basis of source. Source के आधार first classification is on the basis of real sources. There are two types of acids. Acids are of two types. Acids are of two types. First, organic. Acids. Second is inorganic. Inorganic acids. Organic acids and inorganic acids. Inorganic acid also known as mineral acids. It is also known as mineral acids. Inorganic acids को mineral acids भी कहते हैं. Organic acids. Organic acids, those acids which are obtained from animals or plants. वैसे एसिड्स जो एनिमल या प्लांट से प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. तो एसिड्स are obtained from plants or animals. Plants or animals. For example, methanoic acid, acetic acid, lactic acids, citric acids, these are organic acids. Methanoic, acidic, lactic, citric, tartaric, malic, oxalic. These all are
organic acid because these acids these acids are obtained from plants and animals. तो वैसे एसिड्स जो प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं वो सभी एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। मिनरल एसिड्स are obtained from minerals. Acids are obtained from minerals are known as mineral acids or inorganic acids. आप इसे मिनरल एसिड भी कर सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल that is which are obtained from earth crust by the mining के थ्रू अर्थ क्रस्ट से अर्थ के नीचे से या कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो मेटल्स प्राप्त होते हैं वे मिनरल्स कहलाते हैं और उन मिनरल्स के साथ जो एसिड्स प्राप्त होता है उस मिनरल से जो एसिड बनते हैं वो सभी मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, these all are mineral acids. For example, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, etc. So these are mineral acids or inorganic acids. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड वैसे एसिड्स which are obtained from minerals जो मिनरल से प्राप्त होते हैं मिनरल एसिड्स कहलाते हैं और जो प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त होता है वो सभी एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर। कैसे होते हैं? वीक नेचर के होते हैं और मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। इनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है। These are more corrosive. They can corrode easily the metals, but these less. आगे हम लोग देखेंगे on the basis of strength जब क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड का। तो चलिए अब यहाँ पर आपने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड्स प्लांट से और मिनरल से प्राप्त होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे आपके सिलेबस बुक में भी दिए हुए हैं कि किस प्लांट से या किस एनिमल से या किस प्रोडक्ट से हमें कौन सा एसिड प्राप्त होता है, किसमें किस प्रकार के एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ सबस्टेंस। और इसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ एसिड। ये सभी
सभी जो हम लिखने जा रहे हैं ये सभी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, these all are organic acids. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल विनेगर contains acidic acid. Acidic acid इसी का IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एसिडिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। एसिडिक एसिड इज कमर्शियल नेम, कॉमन नेम, एंड इथेनोइक एसिड इज IUPAC नेम। आगे बताएंगे इसे हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड है रेड एंड लाल चींटी। It contains formic acid. Formic acid इसी को मिथेनोइक एसिड कहा जाता है। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। थर्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फोर्थ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड टोमेटो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इसी के नीचे आप कंटिन्यू लिखते जाएंगे। नेम ऑफ सब्सटेंस name of acids. Tamarind, imli, grapes, इन सभी में टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड ऑरेंज, लेमन, संतरे में नींबू, सिट्रिक एसिड और भी कहते हैं साइट्रिक एसिड। जितने भी फ्रूट होते हैं ऑल सिट्रस फ्रूट, all citrus fruit contains ascorbic acid, vitamin C. Ascorbic acid, that means vitamin C. जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं सभी में विटामिन सी होते हैं और ये
इसमें जो प्रेजेंट एसिड होते हैं जिसका कैपिटल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। बटर, मक्खन आप लोग खाते हो, उसमें भी एसिड है। कौन सा एसिड है बटर में? ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वैसे एसिड्स एंड नेम ऑफ सब्सटेंस है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में आसपास यूज करते हैं, देखते हैं। इनसे एक बार आप देख लोगे कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विनेगर, जिसे हिंदी में हम लोग सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। इसे ज्यादातर हम लोग खट्टे होने के लिए यूज करते हैं। जैसे अचार वगैरह आप बनाते हो या प्रिजर्वेटिव मटेरियल के रूप में इसे यूज किया जाता है। तो इसमें एसिटिक एसिड होती है। एसिटिक एसिड प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होता है। आपके मन में आ रहा था IUPAC नेम क्या है? तो ये भी आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड, रेड एंड लाल चिमची, और नेटल लीव्स। नेटल एक तरह का प्लांट होता है जिसके लीव्स, नेटल लीव्स, ये कांटे की तरह होता है। नहीं, आगे जो है वो शार्प होता है और जैसे ही हमें छूटता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिच्छू ने डंक मारा, स्कॉर्पियन काट लिया। बिकॉज इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी। तो रेड एंड या नेटल लीव्स कंटेन्स फॉर्मिक एसिड जिसका IUPAC नेम है मीथेनोइक एसिड। थर्ड इज कर्ड। कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड। कर्ड में, दही में कौन से एसिड होते हैं? लैक्टिक एसिड। एप्पल कंटेन्स मैलिक एसिड। टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट इज टैमेरिंड और ग्रेप्स। इमली, अंगूर या जो रॉ मैंगो है, नहीं, कच्चे आम, दिस कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड। तो इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में, इन सभी में टार्ट्रिक एसिड है। ऑरेंज एंड लेमन कंटेन्स साइट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ऑल सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं, कंटेन्स विटामिन C and the acid present in it whose chemical name is ascorbic acid. Citrus fruit में ascorbic acid present होता है। Next one is butter, नहीं, मक्खन। हम लोग ब्रेड पे बटर लगा कर बहुत खाते हैं। It contains also acid, butyric acid. So these all are examples of organic acid. ये सभी कौन से एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। ये सभी प्लांट से या एनिमल से प्राप्त होते हैं। या तो प्लांट प्रोडक्ट में पाए जाते हैं या एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। कर्ड है, मिल्क है, बटर है, these are animal products. Tamarind, grapes, apple, tomato, these are plants product. तो जो प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त होते हैं ये सारे के सारे एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स। चलिए, इसके बाद है आपका मिनरल एसिड।
चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मिनरल एसिड और इसके यूजेस। आज के लिए इतना ही से